ब्राजील के ओमिया फार्म की लाइव मिल्किंग में क्या होगा? क्या ब्राजील की गिर गाय देगी 50 लीटर से ज्यादा दूध? क्या ऑन कैमरा ब्राजील की गिर गायें तोड़ेंगी 81 लीटर का रिकॉर्ड? वीडियो देखकर समझने की कोशिश कीजिए, आखिर ब्राजील में मिल्किंग की प्रैक्टिसेस क्या हैं? वीडियो की शुरुआत करने से पहले हैवेयू फार्म का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके सहयोग से ब्राजील यात्रा संपन्न हो सकी। शुक्रिया उनका भी जो लोग ब्राजील सीरीज को पसंद कर रहे हैं। बस एक निवेदन और है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए अब नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उबेराबा के ओमिया फार्म की गायें विजिटर ग्राउंड में आ चुकी हैं। अमूमन हर फार्म में इस तरह का एरिया होता है, जहां फार्म में आए मेहमानों के सामने गायों को प्रदर्शित किया जाता है। भारत के ब्रीडर्स के सामने भी ऐसा ही हुआ। सबने ओमिया फार्म की गिर गायों की एक एक बात नजदीक से ऑब्जर्व की। ओमिया फार्म के ओनर भी किसी सवाल का जवाब देने में हिचके नहीं। So, but to work, you need to do the genomics and then you need to freeze the embryos. So, after 6 months or 9 months, when you already have the result of the genetics of each embryo, then you can choose the ones that you will transfer. Okay. That's the goal, let's say, and together with Embrapa, we had some success because the main problem is that when you do this, when you take a sample of the embryo to make the DNA, the embryo is not so strong. So when you freeze them and then you unfreeze them, it's not so efficient. But we got more than 50% in one experiment that we did with embryos that were taken as sampling, some cells for DNA analysis, then frozen, wait for the results, and then transfer it. We're trying to Still under. Yes, still under. But we know already that it's viable, because we transferred 5 embryos and we get 3 calves Very good. with that type of embryos. What is your current conversion ratio in Sorry? embryo? What is your current conceiving ratio? When it's more than 50%. More than It's 55, 54, no less than 40. Not lesser than. Yeah, when we transfer the embryos to the Method receptors. which you are following up currently. Yes, The flesh method. Flesh method. flesh method. And what is your when you do a OPV on an animal? What is the eggs collection? What you do? What do you mean? The Oocytes. egg to embryo? Yeah, oocytes. How many oocytes on an average do you collect from one animal? You mean if we collect, for example, 10 eggs from a cow, normally it's 30%. Normal, the average is 30%. Okay. So we have 3 embryos from 10 eggs. Okay. Yeah, but sometimes you get more. It depends on the bull that you are using. So we already know the bulls that give more embryos. So if you have a very good cow, you choose the bull as well, looking to give a good conversion from egg to embryo. The bull what you use on an animal, the cow, on what combination you use? Not every bull will work out on every. Yeah, we have, at least I use a Excel spreadsheet that I did, that I choose the bull and I choose the cow. I choose all the cows that were collecting eggs and all the bulls that I have semen disposable. That's why in Brazil it's very important to have new bulls that will refresh, because you have a very few, and every time, the consanguinity, I think it's the word. I don't know if that's a word, consanguinity, that's the same blood from the mother, from the cow and from the bull. That's a problem in Brazil. Talking about Yeah. few hour back. Yeah, that's like- that's a problem that we have in Brazil. Yes. Mother, sister. Yeah. Cow is 81 liter record. Sorry. Which cow is 81 liter record? Oh, the cow that's 81, it's in my other farm in Brasilia. But I will show you a cow that has, in 2017 and 18, was the first cow in Brazil.
with 68.5, Which one? Adalia. Adalia, this one. Yeah, and he's very friendly. Come, Adalia, ven. Now, how old are the cow? This cow is from 2009, 11, 15 years. 15 years. Yeah. Still, she's giving. Yes, still, you know, not so much, like 5, 6 eggs per collection, but it's still. And what is the average milk of a cow? Average, not the competition cow. Oh, Average cow milk. What is the yield? Like without The any year- horm- the- without, the- without any hormones. Without any yeah, it's 20. maximum. Yeah, 15 to 20 liters. Yeah, we can. Yes, Yeah, yes, per 15 day. 15 to 20 To liters. 20 in a day. liters per day. It's a gyr cow, you know, Gyr cow a gyr without cow any without any hormones. What Yeah. is what is the lactation? Full lactation yield? Yeah, this is like 8,000. Here it's average 8,000. Average cow, not Uh, the competition. Oh, average cow. So in Brazil we have some standards. You say if you are going to make girolando, usually you use cows above 5,000, Okay. 5,000 kilograms. Okay. How you make girlando? Girolando you make using a gear with a Holstein bull, HF. correct? Yeah, and then you will have a half Holstein, half 50%, you know. And, a girlando gives girlando. Then, okay, yes, if you, then you have the half, and you can use, if you use a gear, then you have a 1/4, correct? Because you have 25%. Because always the taurine, the bull, it comes first. So if you have a Girolando 1/4, that means that has 25% Holstein. So every time to make a new girlando, you have to process into the lab so that the result will be 100% girlando. Best gear and the best Holstein Friesian bull. So a girlando, You mix and- a girlando can't give a full performance girlando. Fiji. If you see my photo on WhatsApp, it's with her she was still a baby. Take this shot. Her name is Fiji. 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 Fiji, like the island. In Fiji, we have Indians only. You know, everybody gives names from cows. When I started to create this, all my cows have name of continent, of land, continents, countries, cities. You know, this came from a line of gyr that all the descendants have name of islands. That's why she's a Fiji. So if I see a cow here and with the name of island, I know from which line of gyr came. I have from Europe, from Asia, from America, different lines. Developed a cow with hormones. Uh-huh. Then her calf is that quality. No, that No, yeah. will not will be transferred there. No. The hormones. You know, in my understanding, the cows that go to tournaments, 60 लीटर पी के तो मर जाएगा. they are not necessarily the best cows. They are the cows that react better to the hormones. समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान दीजिए, पहले तो बातें बाद में हो जाएंगी. वो कह रहे हैं कि हर गाय जरूरी नहीं कि वो बेस्ट फीचर्स की हो, जो हार्मोन्स को सही रिएक्ट करे. गाय कैसी भी हो जो हार्मोन्स को बेस्ट रिएक्ट करती है, वो बेस्ट मिलकर बनती है. समझ रहे? तो बच्चों में वो ट्रांसफर नहीं होता है. तो अभी भी he is using hormonal cow's milk or not? Nobody can use that milk. Okay. That milk cannot be used. It's not safe to drink. Actually, you know, if you go to lactotropin or there are some countries that is forbidden. Okay, but for example, in America, all America, the big farms they using in a daily because the hormone that they are giving to the cows is the same hormone that the cows produce. It's not a new hormone. It's only making like the cow is producing more hormones, but the hormones are the same. The same thing, you know, like in a correct natural quantity when the hormone comes, that becomes healthy. But No, I once understand. in the larger quantity, it became poisonous. Poisonous. So, you know, like
anything. The which is- difference between the difference between the poison and the medicine, it's the quantity. Quantity, that's right. See, same quantity, it becomes drug. Larger quantity is become price poison. yeah. That's And, it. are you giving oxytocin on regular basis for the normal milking? No, we farmers give, we use the calf to induce the milk. In this farm, I have always seen that they use calf to drink milk with the milking. No, using Even last oxytocin. previous They are not using oxytocin. in this farm they are not, but like a lot of farms they use. Yes, because the taurine cows, the Holstein cows, all these came from Europe. They don't need oxytocin. Now the Zebuin cows, when they don't have the calf, then they will need. If they have the calf, then it came naturally. At the time of milking, you matched the calf and the mother. Yes, that's correct. रोहित जी, मैंने बहुत सारे ऐसे जो भ्रम भारत के थे वो पूरा करने की शायद कोशिश की होगी. No, definitely. ओमिया फार्म के ओनर ने अपनी गायों की लाइव मिल्किंग दिखाने का वादा किया था, इसलिए समय होते ही सबने उनकी मिल्किंग जोन की तरफ कदम बढ़ा दिए। ओमिया फार्म पे जा रहे थे तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ये वही है। ये मुझे लगता है ना ब्राजील की ये सबसे बड़ी खूबी है। ये जो ये है ना, सुनो, अब इसमें कुछ नहीं करना है, इनको साला पानी भी नहीं देना इनको. हाँ। पानी भी साला बरसात दे रही है अपने आप. अपना हम देते जब बरसात हो जाती है फिर अपना हैं। यही सबसे बड़ी खूबी है। और सारे खुला मैदान है, खुला खूब मैदान, खूब खाओ। खाओ. साइलेज की कंपनी आएंगी, वहाँ पर आपका एक साइलेज का पूरा बंकर बना के चली जाएंगी, फिर आप खिलाते रहो बस. मतलब इनको बंकर नहीं बनाना पड़ता, बंकर वो आके बना जाते हैं, कच्चा बंकर पूरा वही करते हैं, साइलेज वही बना के छोड़ जाते हैं, इनको कुछ नहीं बताओ. के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर एम्ब्रियो कलेक्शन वगैरह कुछ भी कर रहा है, वो सब कुछ यहीं पे किया जाता है. उन बेंचों पे कोई भी टेक्नीशियन या डॉक्टर ऊपर चढ़ के उनको इंजेक्शन देना है, ट्रीटमेंट करना है. यहाँ से ये कंट्रोल्ड भी है. गाय को इससे एक गाय को अंदर लेके आए और आप ऊपर चढ़ के देखिए, अंदर लेके आए एक ही गाय आएगी, ठीक है. उधर फिर आगे वो सिस्टम है जो जहाँ ट्रीटमेंट होना है, पैर का ट्रीटमेंट होना है, उसकी वो खिड़की खोल देते हैं. अच्छा ये हमने अब इंडिया में भी लगाया हुआ है ये. अच्छा और किशोर भाई के पास में भी है सिस्टम. ये जो आपको काम करना है उसकी खिड़की खोलना है और गाय को बिना तकलीफ दिए उसको बंद कर देते हैं. ये ऐसे ये खिड़की हाँ, जो फाटक खोलना है ट्रीटमेंट के लिए फाटक खोल लो. ठीक है। ये देखो इधर दवाइयाँ रखी हुई है. हाँ। ओमिया फार्म का मिल्किंग जोन रेनोवेट हुआ है, इसलिए उन्होंने हमें छोटी मिल्किंग मशीन से ही लाइव मिल्किंग दिखाने की कोशिश की। Usually, we don't do that because when we have a milking process, correct? Because we don't have a milking process here, because we are not supposed to take milk here. We put like this, and where is the machine? We have here, you see? Small machine. The small machine, and now we are going to use, now we are going to use the small machine to milk the cows. It's not so many. I think we have 10. But all of them are like, has a very, very recent had calves, अभी कितना देते हैं वो देख लेते हैं. तो ये सब कंपटीशन वाली गाय है ना, इस तरह से नहीं है पूरा. Fabrica. Yes, Fabrica. The mother of this cow is the sister of Fabrica, the same sister, with the same father, the same. Fabrica was also a champion. Yeah, not world record, but champion on Expo Cebu, yeah. Yes. Because I still remember it got a prize in Expo Cebu. Yeah. ये उसमें लॉक होता है, इसमें मशीन में लॉक नहीं है. Labo, it's already milking. So they don't need calf. अच्छा हेलो, ये इनको बच्चे की जरूरत नहीं है. Se colocó oxitocina.
अब आप देख सकते हैं लाइव मिल्किंग चल रही है। एक छोटी मशीन चारों थनों में लगाई गई है। गाय के साथ यहाँ बच्चा छोड़ने की परंपरा नहीं है। कम ही फार्म्स पर गायों पर बच्चे को छोड़ा जाता है। बच्चों को अलग से दूध पिलाया जाता है। बढ़िया बुलाएगा। Essa pariu ontem, né? That cow get calf on yesterday. Já tá limpo o leite? Tá não. So you don't have milk yet. It's how we call before milk. Yeah. Colostrum. Colostrum, yes. ब्राजील यात्रा का ये पहला लाइव मिल्किंग का वीडियो है जिसे आप देख रहे हैं। आपको क्या लगता है ये गाय कितना दूध देगी? 10 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर, आखिर कितना दूध देगी? This one, uns 30 dias, né? Que ela pariu. This has like 45 days. This one. This is yesterday. Ah? Dá quanto? Uns 7, 8? Ah? Ah, aqui. गायों को संभालने वाले इस युवा ने काफी देर कोशिश की। हमें लगा कि गाय इस कंटेनर को भरकर तो दूध देगी ही, क्योंकि ब्राजील की गायों के बारे में बहुत कुछ सुना था। लेकिन जब लाइव मिल्किंग पूरी हुई और इस कंटेनर को बेहद नजदीक से देखा तो हैरान रह गए। Around 5 liters. Yeah, because usually they give more milk in the morning. Because a que hora você ordenhou? Umas 8, né? तो हमने अभी आपको दिखाया ब्राजील के बहुत अच्छे फार्म की एक गाय की लाइव मिल्किंग। आपको लगता होगा ब्राजील में गायें जो है 80 लीटर, 50 लीटर, 60 लीटर दूध देती हैं। हमने लाइव देख लिया है। एक टाइम की गाय ने 5 लीटर दूध दिया है और इससे ज्यादा भारत में बहुत सारे फार्म्स में लोगों की गायें दूध देती हैं। भ्रम मत पालिए, कुछ भी पालिए, सिर्फ भ्रम मत पालिए। ये जो गाय है इसकी मदर को प्राइज मिला हुआ है, अवार्ड मिला हुआ है एक्सपोजेबू में। मैंने खुद देखी हुई है वो गाय। मैंने उनके ऑनर के सामने बताया भी था कि मैं उस गाय के पीवा की वो गाय है। मैं उसको पहले देख चुका हूँ, इसकी मदर को भी देख चुका हूँ। आप सबके सामने हमारा जो जेनेटिक्स है वो बहुत अच्छा है। प्योर जेनेटिक ऑफ इंडिया इज द बेस्ट, इज द बेस्ट, इज द बेस्ट। हमारे साथ बड़ा बापू है। इन्होंने तो न जाने कितना कुछ देखा है अपने जीवन में। इनके पिताजी ने भी बहुत कुछ देखा और उनकी लाइन की गायें तो बहुत मिल्किंग वाली गायें मानी जाती हैं भारत में। तो सर आपने लाइव मिल्किंग देखी? वो तो सही, सबने देखा। इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर था। अच्छा, लेकिन एक चीज का डिफरेंस हो रहा है। ये टाइम डिफरेंस इन्होंने 12 घंटे का मेंटेन नहीं किया। तो दूध सुबह 8 बजे निकला है, तो सुबह 8 बजे वाला जो दूध है वो 9-10 लीटर है और शाम को जल्दी निकाल लिया इसलिए कम है। लेकिन नहीं, फिर भी 2 लीटर का हाँ, वो अच्छी जेनेटिक की गाय है। तो इससे तो ज्यादा तो हमारे यहाँ भी दे रही है। 32 लीटर का भी है, 36 अच्छा, लीटर का भी है। एक चीज हो, पूरा फार्म जो है बापू, पूरा फार्म जो है केवल 3 लोग मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें गेस्ट जब आते हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन भी वो 3 लड़के ही कर रहे हैं।
हाँ, नहीं, वो सही और सबसे अच्छी बात ये मेहनती है लड़के यहाँ मेहनती पर, है, हमारे hard पास worker। मेहनत करने वाले लोग नहीं है। दूसरा क्या है, वो है 167 जिम्मेदारी से करते हैं। मतलब उसको वो 2.6 मेंटेन करना भी बहुत तो दिक्कत है। करीबन 500 एकड़ के आसपास ये जमीन है जिस पर ये फार्म है, पर प्रकृति का भी इनको वरदान है कि जो घास है वो अपने आप बरसता है। कंडीशन भी उसके फेवरेबल है यहाँ के केटल की ब्रीडिंग के लिए भी। अब सोचिए मतलब उसके फिजिकल आप जब कैरेक्टर में जाएंगे तो शी इज अभी ब्यूटीफुल 45 डेज हुआ है ना 45 days। And this cow is a good quality cow. Mother was a champion, local champion, not a world champion, but Yes, the mother, yes, Fabrica, Fabrica was the mother. If She we was a put champion. hormones to this cow, you will easily get from that cow 50 to 60 liters per day. देखिए साहब कहना है कि Hormones. अगर हार्मोन देते हैं तो 50 से 60 लीटर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक नेचुरल वे में अगर मिल्किंग करनी है, एक इथिकल मिल्किंग करनी है, तो गाय उतने ही दूध देगी जितनी भारत में देती हैं। तो भ्रम मत पालिए, इस टूर का एक मकसद हम लोगों ने अभी साक्षात देख लिया, और बापू उससे बड़ा तो ये देखने वाला कोई क्या है। हम लोग तो जो भी कहें वो तो आप झूठ भी मान सकते हैं हमारी बात। जो इन्होंने देखा है, जो समझा है भारत में और यहाँ, वो बेस्ट, वो देखिए एकदम सही। हमारी जो फेडरेशन है उसका पर्पज ही है, IFIZCI भारतीय किसानों को उस मुकाम पर पहुंचाना चाहती है जो गंभीर ना रहे। जो ब्राजील ने पूरी दुनिया को दिखाकर बनाया है। और हम जो हमारे दोस्त लोग यहाँ हैं उनको भी भारत से बहुत आशाएं हैं कि भारत में जो प्योर जेनेटिक्स ऑफ इंडिया है वो कैसे और इम्प्रूव हो, सेलेक्टिव ब्रीडिंग से बस केवल। अमित भाई, आपने देखा लाइव मिल्किंग, आपने अपने फार्म्स की गायों का भी देखा होगा। यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, अनएथिकल भी कह सकते हैं हम उसे अपनी भाषा में। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? भाई पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ, गाय उधर आके दूध के लिए कड़ा है तो ये लोग पहले ही उसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देके उधर कड़ा कर दिया। बाद में बिना बच्चा गाय दूध नहीं देता, अगर इंजेक्शन दिया है तभी बिना बच्चा गाय दूध देता। उसके ऊपर मशीन भी लगाया, मशीन गलती बात नहीं है, बच्चे के साथ मशीन लगाएगा तो अच्छी बात है। और दूध बहुत कम आया जितना वो बोल रहा था। भाई आपका क्या रहा है रिएक्शन? अभी हम जब से इधर आया तब से उनसे जब सवाल पूछा, बात किया, तो जब POI के बारे में अगर बात करेंगे तो POI के बारे में जब बात किया तो बोल रहा है कि दिन में 60 लीटर 64 लीटर्स रिकॉर्डेड है। वो कभी नहीं हो सकता। अगर कोई हार्मोन है, समझ लो 15 लीटर दूध देने वाले गाय या 20 लीटर दिन में दूध देने वाले गाय, आप ऑक्सीटोसिन लगाओ या किसी XYZ लगाओ, हार्मोन लगाओ, वो कैसे प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो आप इंजेक्शन मार दोगे तुरंत 40 लीटर दूध नहीं देगा, पॉसिबल नहीं है। ये बोल बोल के हम सबको मूर्ख बना रहा है। बहुत ये क्या बोलते हैं, फुल बना रहा है। और उसके हाँ भाई, मैं भी देखा है, सुना है, इधर ब्राजील में और मशहूर ब्रीडर्स है, मशहूर डेयरी फार्म्स है जहाँ पे हर दिन में एक गाय 40 से 60 लीटर दूध दे रहा है। उस फार्म को हम जाना चाहते हैं। बिल्कुल जाएंगे। आगे समय में हम उधर बिल्कुल। जाके उनका भी क्या हाल है वो भी देखेंगे। सुना है, देखेंगे, लाइव देखेंगे, तभी आंखों पे मानेंगे। सही है। बाहर बोर्ड देख के कुछ नहीं हो सकता। दीपन भाई, आपका क्या रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? मेरा क्या एक्सपीरियंस है, POI में तो पहले तो 60-65 लीटर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब वहाँ से वो लोग लेके आए तो वहाँ पे इतना दूध पहले ही नहीं था कभी POI में। जो 60, 45, 50 लीटर्स दूध वहाँ पे देती थी, तो यहाँ पे कैसे हो गया? फिर वो POI थोड़ी हुई है। उसको तो मिक्स जेनेटिक्स या फिर गिरलैंड भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। POI तो कभी बोल ही नहीं सकते। मेरा तो ये ऑब्जर्वेशन है, इतना कुछ करने के बाद भी उसने 5 लीटर दूध दिया है। आपकी हर गाय 5 लीटर दूध देती होगी टाइम का, हर गाय उससे ज्यादा देती होगी। लेकिन अगर आज मेरे फार्म में देख लिया ना, 100,000 गाय है, मैं आपको कम से कम 50 से 60 गाय ऐसे सीधा कड़ा करके आपके सामने 8 लीटर मिनिमम देखा है मैंने, आई हैव सीन। एक टेट बच्चा को देने के बाद 8 लीटर अपने सामने निकल जाएगा। तो देखिए, सबका रिएक्शन लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, सबका ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। नो डाउट फार्म इज वेरी ब्यूटीफुल। पूरा यहाँ की खूबी ये है कि ये ग्रेजिंग लैंड ही यहाँ की ताकत है। और अगर ये नेचुरल वे में करते तो मुझे लगता है और भी ऊपर जा सकते थे सब कुछ। ठीक है, भारत के पास ये सब कुछ नहीं है, जो था वो हाई पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो हमें कोशिश करनी है कि अच्छा लेना है, अच्छा टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना है। माटी इंडिया का मकसद है ब्राजील विजिट के दौरान
सच्ची तस्वीर आपको दिखाना। हर गौपालक, डेयरी फार्मर, ब्रीडर समझदार है, वो खुद अपनी राय बना सकता है। हमने जो देखा आपको दिखाने की कोशिश की। अभी ओमिया फार्म के ग्रेजिंग लैंड का टूर बाकी है। नेक्स्ट एपिसोड में आप उसे जरूर देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल।